सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात, satyam apriyam. It is a verse from Manusmriti that highlights the significance of constructive and compassionate communication. It aligns it is a quintessence of modern psychological term, feedback mechanism. What is feedback mechanism? How does that impact us? It is good. Is it good or bad for us? Let us try to understand all these things and all these very important thing that we must know about ourselves in this video. Hi, my name is Kushi Tiwari and let's just get straight to the point. Very first thing, what is feedback mechanism? Whatever action you take, कोई भी एक्शन आप लेते हो तो आप वो एक्शन लेते हो उस बेसिस पे कि आपको कैसा फीडबैक मिलेगा। आप कोई कंटेंट क्रिएट करो, आप कर रहे हो क्योंकि यू आर वेल अवेयर और मे बी यू आर इन सर्च ऑफ सम फीडबैक कि आपको आपने कैसा परफॉर्म किया, कैसी आपकी प्रेजेंटेशन थी, क्या क्या चीज़ें बुरी थी, क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, ये सारी फीडबैक के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। You do a very good thing, like you do all the household chores and then you are in feedback, you are waiting for feedback कि whether your parents happy with that whatever you did और ऐसा कुछ भी, whether that makes you feel happy, तो आप खुद को feedback दे रहे हो। तो directly or indirectly we can say कि feedback mechanism is something that we are in search of for the whole day. So whatever actions we are taking is for feedback. Now, what is feedback mechanism? How can we know about it in depth? So feedback mechanism can be of two types. One is feedback mechanism from the point of view of biology, in which you study about hormones और वो hormones कैसे आपके feedback में मदद करते हैं and all of that. On the other hand, feedback mechanism can be about how your psychology based upon your psychology. तो आपके psychology point of view से feedback किस तरीके से आपके इंडिविजुअलिटी को या फिर आपके बिहेवियर को इम्पेक्ट करते हैं, वो आप इस वाले कैटेगरी में पढ़ते हो। तो साइकोलॉजिकल फीडबैक मैकेनिज्म में भी देयर आर फर्दर थ्री क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, second is negative feedback mechanism, and third is punishment feedback mechanism. Let's start with positive feedback mechanism. See, positive feedback mechanism means repetition of a behavior. What is repetition of behavior? uh, देयर वाज अ क्लास टेस्ट और आपने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। द टीचर अप्रिशिएटेड यू, शी सेड दैट यस यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। व्हाट विल योर साइकोलॉजी रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग? योर ब्रेन विल टेंड टू डू दैट कॉन्स्टेंटली। तो वो जो आपका बिहेवियर था दैट यू स्कोर्ड वेल, यू स्टडीड एंड यू स्कोर्ड वेल, वो जो आपका बिहेवियर था वो चीज़ आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो जाएगा एंड देन यू विल टेंड टू डू दैट कॉन्स्टेंटली। आप कॉन्स्टेंटली उसी सेम बिहेवियर को रिपीट करोगे, दैट इज आप कोशिश करोगे कि मैं गुड स्कोर करूँ या फिर वैसा अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में मैं आऊँ। ओके, second is negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism is constructive and sort of feedback mechanism when you are in search of improvement, when you are improving yourself. Let's take example of class test again. Class test हुआ, you were one of the students who scored very well, but teacher but the respond of teacher, the feedback of teacher was not that तुमने बहुत अच्छा किया. It was rather that you could have done even better. तो when आपको ये चीज़ सुनने में मिलेगी कि हाँ मैं और अच्छा कर सकती थी या फिर कर सकता था, then your psychology will act in a certain way that yes, you have to do even better, it was not good enough so you have to do even better. ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक जो ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, उसकी साइकोलॉजी फोकस करती है इम्प्रूवमेंट पे। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आप कांस्टेंट चल रहे हो अच्छी ही वे में, यानी कि आप ग्रोथ की तरफ कॉन्स्टेंटली चल रहे हो। बट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आप एक स्टेप फर्दर लेते हो, लाइक यू टेक अ स्टेप फ्रंट फॉरवर्ड और आप कोशिश करते हो कि आप जो हो उससे भी बेटर हो जाओ। नाउ थर्ड कैटेगरी इज पनिशमेंट फीडबैक मैकेनिज्म। पनिशमेंट फीडबैक मैकेनिज्म एज द नेम इटसेल्फ स्टेट्स कि वो ऐसा फीडबैक है जो आपको पनिशमेंट के थ्रू मिल रहा है। तो अगेन टेक एग्जांपल ऑफ क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट हुआ, आपके नंबर अच्छे नहीं आए और टीचर पनिश्ड यू, शी शी टोल्ड यू टू लीव द क्लास और उन्होंने आपको पनिश किया वट एवर इट वॉज। तो कहीं ना कहीं वो जो फियर था, वो जो मार थी, वो जो दर्द था या फिर वो जो मेंटल इम्पैक्ट था,
उस पनिशमेंट का, वो चीज़ आपके दिमाग में इनग्रेव हो जाएगी। तो इसका जो असर होगा वो आपके मेंटल बीइंग पे अलग तरीके से होगा। हाउ दैट वुड बी हैपनिंग? तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव वे में क्या हो सकता है, यानी कि जब पनिशमेंट फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है इतना अच्छा, देन व्हाई आर वी फॉलोइंग दैट और व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। पनिशमेंट फीडबैक मैकेनिज्म किन्हीं किन्हीं कैटेगरीज में बहुत परफेक्टली काम करता है। जैसे कि इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, इफ अ क्रिमिनल इज इफ अ क्रिमिनल इज कॉट, और अगर उस क्रिमिनल को फीडबैक देकर छोड़ दिया जाए, वी कैन नॉट गारंटी दैट द पर्सन और द क्रिमिनल विल इम्प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो उस चीज पे, यानी कि हम किसी भी सिचुएशन पे या फिर हम किसी गारंटी पे हम उसको नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए पनिशमेंट का यूज किया जाता है। सो द फर्स्ट रीजन दैट वी यूज पनिशमेंट फीडबैक एज मैकेनिज्म, वो ये है कि हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। सेकेंड इज व्हेन वी हैव टू टेक इंस्टेंट कंट्रोल। A child behaves in an inappropriate manner whether he is doing something that he or she should not do. हम क्या करते हैं, और what we generally do, we slap him or her, we slap the child, और उसके बाद वो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो जब आपको किसी चीज पर इंस्टेंट कंट्रोल चाहिए, देन यू यूज पनिशमेंट फीडबैक मैकेनिज्म। ये तो हो गए इम्प्लीकेशन। ये जो चाइल्ड वाला था, इट इज शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन, बट इट ऑल्सो हैज दिस type of feedback mechanism also had negative points. Very first thing is that the person then, over time, the person tends to create low self esteem. That person, that particular individual starts to feel कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, और मे बी मैं कोई चीज़ अच्छी कर ही नहीं सकता, आई डोंट हैव दैट पोटेंशियल टू डू थिंग्स राइट, और मे बी ये जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं वो चीज़ें कर ही नहीं सकता, और इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। ये होगा फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। सेकेंड थिंग इज दैट वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक रिजेंटमेंट की भावना आ सकती है। व्हाट इज रिजेंटमेंट? दैट वी कैन ऑल्सो नो अबाउट इट लाइक स्टबन। स्टबन या फिर वो बदले की भावना, कि किसी बच्चे को एक थप्पड़ पड़ गया एंड देन दैट स्टूडेंट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक मैं तो उस टीचर को पसंद नहीं करता या फिर नहीं करती, she is like this, and then she starts to create indiscipline in classroom just because of that one punishment feedback. Okay, तो इस सॉर्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं, और पॉजिटिव पॉइंट्स के अगर बेसिस पे हम देखें तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बिकॉज नॉट ऑल द टाइम आप किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट कर सकते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। Now, what is that you gain from positive feedback mechanism, negative, and then punishment? Punishment का हमने देख लिया कि पॉजिटिव पॉइंट में देखें तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर इंस्टेंट कंट्रोल पाने के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग पे या फिर किसी भी चीज़ पे। नेगेटिव पॉइंट ये है कि लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है ओवर पीरियड, और दूसरा है कि रिजेंटमेंट आ जाता है उस इंडिविजुअल के अंदर। नाउ वी ट्राई टू नो अबाउट पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ इट। तो वो ये हो जाएगा कि जो बिहेवियर है, यानी कि वो जो प्रोग्रेस है वो कांस्टेंट हो जाती है, एंड देन यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू नॉट फॉल अपार्ट। तो आप कोशिश करते हो कि आप एक प्रोग्रेसिव मैनर में ग्रो कर रहे हो आगे। Negative feedback mechanism, which I personally believe that is quite good and better, best than all of those, वो इसलिए क्योंकि जब नेगेटिव फीडबैक आपको मिलता है देन यू बिल्ड सेल्फ एफिकेसी। दैट मीन्स कि आपके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है दैट यस आई कैन डू द बेटर, लाइक आई कैन डू बेटर, मेरे पास पोटेंशियल है और मैं और अच्छा कर सकती हूँ। सो आई नीड नॉट टू स्टे एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, इवन इफ आई एम गुड आई कैन इवन राइज फ्रॉम दैट towards even better. So I prefer, or for me, I feel that negative feedback mechanism is much more better than the other two. Now, how, one more thing is that verse that I spoke in the beginning of the video, वो क्या था? सो इट मीन्स कि आपको फीडबैक देना चाहिए, आपको फीडबैक मांगना भी चाहिए, बट दैट फीडबैक शुड नेवर बी इन अ मैनर दैट मे हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द पर्सन whom you are talking to. इसका मतलब ये है दैट डिसिप्लिन इज नेसेसरी बट नेवर द डिसअपॉइंटमेंट और नेवर द ह्यूमिलिएशन। डिसिप्लिन नेसेसरी है, आप उस इंसान को बता सकते हो वेदर दे आर डूइंग गुड और बैड, बट इफ यू ह्यूमिलिएट देम इन ऑर्डर टू टेल देम वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, इट इज सर्टेनली रॉन्ग थिंग। तो अगर इस मैकेनिज्म का या फिर इस साइकोलॉजी का
परफेक्ट वे में यूज़ किया जाए, देन यू विल फाइंड आउट कि आपके आसपास होने वाली चीज़ें या फिर जो चीज़ें आप अपने साथ होते हुए देख रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाती है। एंड इफ यू डू इट इन अ रॉन्ग मैनर, तो यू विल फाइंड आउट दैट थिंग्स विल फॉल अपार्ट। तो फीडबैक मैकेनिज्म को जितना हो सके उतना पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। और I felt that maybe it is a very necessary thing to know, all of us, not even just a single person, because हम constantly feedback की ही search में हैं, whether we focus on that or not. But as I study psychology, I know that we all are in search of feedback. हमें feedback चाहिए. If I am creating content, if I am making videos, then I am in search of feedback, whether I am doing right or wrong. अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रही हूँ तो उसका फीडबैक मुझे चाहिए होगा, अगर मैं पॉजिटिव कर रही हूँ तो उसका फीडबैक मुझे चाहिए होगा, वेदर आई आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम फ्रेंड्स और एनीवन। सो we are all rooted with this term, feedback mechanism. So yes, that's all for this video. Thank you for watching. Bye bye.